अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई ने निगरान हुकूमत सी ना वो ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 13,000 ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੱਸਣ ਫਿਰਦੇ ਪਏ, ਦੋਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਪੂਰੀ 1000 ਰੁਪਏ 1000 ਹੀ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। पाकिस्तान की जिन्होंने इलेक्शन करवाए थे, जिनकी बदौलत हालिया हुकूमत का हमें मुंह देखना पड़ रहा है और माशाल्लाह से जिस कामयाबी से हुकूमत चल रही है वो सबके सामने है। निगरान हुकूमत काकड़ साहब जो हैं उनके दौर के जो वज़ीर हैं एजाज साहब और दीगर वज़रा जो है उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन सवाल पूछने का ये है कि क्या इनका ये जाना जायज़ है? 1.5 साल ये हुकूमत में रहे हैं, 1.5 साल के अंदर इन्होंने इन IPPs को बर्दाश्त किया, बल्कि बर्दाश्त किया इनकी परवरिश की। तो आवाम से पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या जो निगरान हुकूमत है, जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत है, क्या उनका हक़ बनता है कि इन IPPs के ख़िलाफ़ जो है वो अदालत में जाएँ? आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान साहब का निगरान हुकूमत अनवारुल हक काकड़ साहब, गौहर एजाज साहब, ये इन्होंने इलेक्शन कराए और ये मौजूदा हुकूमत वजूद में आई। इनके दौर में जो IPPs थे, यही IPPs थे जो अब बिजली बना हमें महंगी दे रहे हैं। इन्होंने कहा जी हम इनके खिलाफ अदालत में अब जा रहे हैं। भाई इन्हों के दौर ये आप पैसे देंदे रहे इन्हों उस वक्त ये गए नहीं। आपका क्या ख्याल है, ये दुरुस्त कह रहे? ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜੀ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਵੋ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਭਰਾ ਨੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕਿਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰ 47 ਨਹੀਂ 55 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਆ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਭਾਵੇਂ 1000 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਖਾਵਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੱਢੀ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍हेंगे ਬੱਚੋं को दूध के डिब्बे देंगे। ਬੱਚੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ 25,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਘੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ 45,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਤਾਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਫਾਂਸੀ ਲੈਣੀ, ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਡਬਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਟੱਬਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਸਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਹਕੂਮਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਗਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਉਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਭਾਈ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਨਾ ਕਾਕੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਵਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵਧੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਭਾਵੇਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ 13,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਨੱਸਣ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਦੋਰਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ। ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ 1000 ਰੁਪਏ 1000 ਹੀ ਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। 200 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ 33-3400 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਨਿਟ ਹੁਣ 3300 ਰੁਪਇਆ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ 246 ਯੂਨਿਟ ਸਰਿਆ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ। ਹੁਣ 126 ਯੂਨਿਟ ਸਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ 2 ਲਾਈਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। 126 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 5,500 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਈਦ 'ਤੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਈਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਪੱਖੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ 46 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਸੜ ਗਏ 200 ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਚੋਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ। मनिया नवाज शहबाज शरीफ साहब ने आवाज़ लाई है भाई 300 यूनिट फ्री ने, आप बिल जमा कराने आएंगे आपका बिल जमा हो जाएगा। आपका बिल पहले ही अदा हुआ होगा। पहले दावा कितने गई हैं भैन, साडा तो नहीं हो रहा। साढ़े 126 यूनिट का बिल आ रहा। उन्होंने अपने लिए किया साडा बिल दा। आप AC 'ਚ बैठे ने, उन्होंने बाहर निकलेंगे तो उन्होंने पता लगेगा कितनी गर्मी पै रही है। सुबह का पसीना नहीं सुकिया भैन, सुबह का गर्मी पै रही, दिल घबरा रहा है। असी जवान बंदे हाँ,
ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਗਏ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਰੁਪਇਆ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਸਰ, 1000 ਰੁਪਇਆ। ਦੱਸੋ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਰ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, गवर्नमेंट ने ही किया। ਸਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਸੋਚੋ, ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਣੀਓ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਧਾਓ। ਇੱਕ ਦਵਾ ਮਣੀਓ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੋ ਸਾਡੇ 30,000 ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਇਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਚੀਕਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਹ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਹੀਏ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ 200 ਦੀ ਕੱਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨਾ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਤਾੜਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਣੀਓ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਥੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਆਂਦੀ ਏ ਘਬਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਥੜੀਆਂ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਅੰਦਰ ਘਬਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਥੜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ नहीं जाता सारी रात। अनवारुल हक काकड़ को भाई आप जानते हैं? हाँ, निगरान वज़ीर आज़म। वो निगरान वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि हम जो है ना इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बिजली के बिल हैं IPPs के ख़िलाफ़ अदालत में जा रहा हूँ। अपने दौर के अंदर ये हज़ारों अरब रुपए इनको खिलाता रहा है, क्या ये सच बोल रहा है? ना, ये ड्रामा कर रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हाँ, इसके दौर में भी बिजली महंगी होता रहा है और इन लोगों की वजह से बिजली महंगी। बिल्कुल इन्होंने महंगाई शुरू किया है। तो आप क्या कहते हैं इसके खिलाफ? तो हम इसके खिलाफ ये कहते हैं कि इसको बस बैठना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये झूठे लोग हैं। झूठे लोग हैं, वो बस ये ड्रामे कर रहे हैं, हम हमारे साथ ड्रामे कर रहे हैं, हमें फंसा के हमारे साथ ड्रामे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप क्या हुकूमत को कहेंगे, ये बिजली के जो इतना महंगा हुआ, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो हुकूमत को यही पैगाम है कि हमारे साथ बस गुजारा करे और हम रिलीफ दे हमें। रिलीफ दे। हाँ, तो ज़िंदगी थोड़ा आसान हो जाएगा, वरना सारे लोग बाहर जाएंगे, यहाँ पे बस यही हुकूमत के लोग रह जाएंगे, सारा हुकूमत मुल्क खाली हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, एक शख्स था अनवारुल हक काकड़ साहब का वज़ीर आज़म निगरान, उसने ऐलान किया कि IPPs के ख़िलाफ़ मैं जनाब अदालत में जा रहा हूँ, और गौहर एजाज जो उसके साथ है वो कहते हैं कि जी हम लोग जो है ना अदालत में जा रहे हैं IPPs के ख़िलाफ़, ये बिजली के बिल जो इतने बढ़ गए हैं उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। आप ये सच बोल रहे हैं? ठीक है ये? सर ये सारे सच्चे हैं, उसमें मियाँ नवाज शरीफ हो, उसमें इमरान खान हो, ठीक है, उसमें जमात इस्लामी हो, उसमें MQM हो, उसमें पीपल पार्टी हो, जरदारी साहब हो, ये सब सच्चे हैं। हम झूठे हैं, हम इनको पाल रहे हैं, इनकी बिजली फ्री, इनकी गैस फ्री, इनके बिल फ्री, इनके घर फ्री, इनके फ़ोन फ्री, पेट्रोल फ्री और मुलाजम फ्री, हम इनको पाल रहे हैं। ये सच्चे हैं, हम लोग झूठे हैं, और हम इनकी ना ग़ुलामी कर रहे हैं, हम इनके मुलाजम हैं, अयाशियाँ ये करते हैं और अजाला हम लोग भुगतते हैं। और काकड़ साहब जब 1.5 साल गवर्नमेंट में रहे हैं, उस वक़्त इनको याद नहीं था। जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट आएगी तो खान साहब बोलेंगे जी ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ठीक है। जब खान साहब की गवर्नमेंट आएगी तो मियाँ साहब बोलेंगे, जरदारी साहब बोलेंगे। जब जमात इस्लामी आएगी तो कोई ये डाकू हैं। नहीं, ये सब सच्चे हैं, हम चोर हैं, हम डाकू हैं। आटे में टैक्स, साबुन में टैक्स, तेल में टैक्स, पेट्रोल में टैक्स, बिजली के बिलों में वो टैक्स लगा दिए हैं जो हमारे MPhil किया हो ना, किसी ने MPhil किया हो उसको दिखाए ना यार ये बिल में टैक्स देखो कितने हैं, तो वो नहीं बता सकता कि इतने टैक्स लगे हुए हैं। तो छोटी गल की है, जब कि IMF भी परेशान है कि केड़ा टैक्स है। हम ड्रामा कर रही है, उनको सारा पता है। वो कहते हैं, उनका मैंने वो सुना है बयान, उन्होंने कहा है ये जो टैक्स है ना ये हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ये सियासी बयान है, उन्होंने लिख के दिया है कि ये टैक्स लगाने हैं आपने। बहरहाल मुख्तसर ये है भाईजान कि ये सब मिले हुए हैं, ठीक है, ये बैठे हुए हैं एक पालकी के ऊपर, और इनका बोझ हम लोगों ने ना अवाम ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है, और हम बाहर नहीं निकलते। हम सिर्फ फेसबुक पे, मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बैठ के बड़ी बातें करते हैं। हम कब निकलते हैं? रात को 10:30 बजे के बाद किसी भी होटल पे चले जाएं, वो कहेंगे भाईजान 20 मिनट ठहर जाएं,
ये उठेंगे तो आपकी बारी आएगी, उधर हम 10,000 का खाना खाएंगे, दिन में हम बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमारे साथ हो रहा है, ये उस वक्त तक होता रहेगा भाईजान जब तक एक आम आदमी और एक गाड़ी वाला और एक पराडो वाला इकट्ठे बाहर नहीं निकलेंगे। इसको मुल्क का यही हाल होगा। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए। आप क्या कहते हैं? नहीं जी, बिल्कुल वो भाई बिल्कुल सही बातें बता रहे हैं कि हुकूमत जो है ना, ये सब मिले हुए हैं, इनमें कोई भी जो है ना अवाम के लिए ना कोई भी नहीं है। अवाम में से कोई उठेगा अवामी नुमाइंदा तो तभी अवाम के लिए कुछ सोचा जाएगा, वरना जो है ना ये बहुत मुश्किल है। मुल्क आप क्यों नहीं उठते? आप क्यों नहीं उठते? सर देखें, हम तो ज़ाहिरी बात है, झूठ क्या बोले जी, ज़ाहिरी बात है हम चाहते हैं कि कोई बाहर निकले, उनके साथ हम निकले। ज़ाहिरी बात है एक दूसरे के सहारे पे बैठे हुए हैं, ਤੁਸੀਂ ਆਸ ही ला के बैठे हो, आप नहीं करने। सभी आस लगा के बैठे हुए हैं। आप खुद ज़ाहिरी बात है जी, जो कोई आया क्या किया इन्होंने, बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का इन्होंने। कर्जे खुद लेते रहे हैं, खुद खाते रहे हैं, अवाम ने थोड़ी कर्जे लिए हैं, अवाम ने थोड़ा खाया जी। लेकिन ये तो वो बात है जो हर शख्स करता है। मैं कहता हूँ जैसे उन भाई ने एक बात की है, वो क्लियर बात की है कि देखें जनाब, एक चोर दूसरे को बुरा कहता है और दूसरा चोर पहले को बुरा कहता है। यानी कि इसी तरह ये हमें, यानी कि आंखों में वो मिट्टी डाल रही है, मिर्चें डाल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। निकलना कब है? अल्लाह करे जी, बस सारे इकट्ठे हो गए निकलें। बस बात है कि तकलीफ़ में तो सारे हैं जी, ये जितने भी मुलाजमीन हैं ना सब तकलीफ़ में हैं। अब मेरा बिल जो घर का 37,000 रुपये बिल आया, और यकीन करें कि अगर जो 1,000 रुपये डेली का लेने वाला है 37,000, 2 पंखे हैं जनाब, वो अपना बल्ब है और एक मोटर है और एक फ्रिज है, AC उसी कोई चक्कर नहीं, कोई चीज़ नहीं है। तो 37,000 रुपये बिल मैंने। अरे आपको पता है कि जो बिजली के वजीर हैं वफाकी, उनका कितना बिल है? नहीं, मुझे नहीं पता इनका। वफाकी वजीर बिजली और पानी जो है उनका कितना बिल है? फ्री है उनको तो 131 रुपये बिल आया उनको। अल्लाह माफ़ करे, केंज में लान के पाए ना बिल। मस्जिद का बिल जनाब 4 महीने से तार काटी हुई है, बंद है मीटर, 54,000 रुपया बिल भेजा उन्होंने। ये 4 माह से बंद है। ये मस्जिद का बिल है जी, ये मस्जिद का बिल ये मस्जिद का बिल है, 4 महीने से बंद है जी। 54,000 रुपये बिल। हाँ जी, एवरेज डाली है जी उन्होंने, हर माह की एवरेज डाली है। अच्छा, 4 महीने से बंद मीटर की इन्होंने एवरेज डाली हुई है। 54,000 बिल किया होगा इन्होंने मस्जिद के साथ ही। आप गए नहीं? सर उनके पास जा रहे हैं, चक्कर लगा लगा के थक गए हैं। वो कहते हैं जी सारा SDO नहीं है, कभी वो नहीं है, वो करेंगे जी सुबह शाम। मस्जिद के लिए कुछ नहीं करे जी उन्होंने, आम आदमी के लिए क्या करना उन्होंने। अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप जानते हैं साबका निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब अनवारुल हक काकर साहब, जी उनके साथ एक गौहर एजाज साहब होते थे वज़ीर जो उनके हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया कि हम जनाब अदालत जा रहे हैं IPPs के ख़िलाफ़। अपने दौर में हज़ारों अरब रुपए IPPs को देते रहे, उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, अब कह रहे हैं अदालत जा रहे हैं। ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? इन्होंने भी करप्शन की है। ज़ाहिर बात है कि जो वज़ीर होता है वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपने पैसे लगाए होते हैं, ठीक है ना, वो अपने पैसे वसूल करते हैं। जो भी वज़ीर आज़म बनता है, ठीक है ना, जो वज़ीर बनता है, ठीक है, उन्होंने टिकटां खरीदते ने, काहदे लिए खरीदते हैं भाई, ਇਹ बिजनेस कर रहे हैं, आवाम ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ नहीं दे रहे, ठीक है ना, बिजनेस करते पे ने, ਇਹ बिजनेसमैन बने हुए हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान के हक के अंदर फैसले करते हों तो पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। अब मैं ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हाँ, तुसी मेरे खिलाफ हो, मेरी हुकूमत जाएगी, तुसी मेरे खिलाफ हो जाओगे। एक दूजे ਨੂੰ ਫੜਨ ਫੜਾਈ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੇਸਨੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲੀਫ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਗੁਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਜਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਵਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕੌਣ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, 14,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ, AC ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਦਈਏ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਨਵਾਰੁਲ ਹੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਅਦਾਲਤ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਅਗਰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਮਕਾਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ बहुत ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं तो ਅਸੀਂ एन जी पीछे ही रहना भाई। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू। इनवारुल्लाह काकड़ साहब को आप जानते होंगे, साहब का निगरान वज़ीर आज़म है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी मैं IPPs के ख़िलाफ़ अदालत में जा रहा हूँ। ये IPPs वही IPPs हैं जो पाकिस्तान जिनके साथ हमारे बिजली के मुआहदे हैं। ये 1.5 साल निगरान हुकूमत रही है, ये तब तो इन्होंने इनको पैसे खिलाते रहे, अब ये कहते हैं हम अदालत में जा रहे हैं। देखिए जी, हालात ये हो चुके हैं कि बिजली के मामलात में ओवरऑल तो सारा जो पाकिस्तान का हाल ही बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सुबह एक लड़का यकीन करें आया बाज़ार में, 1 लाख रुपए बिजली का बिल है उसका, 15,000 रुपया उसकी तनख्वाह है, बिजली का बिल उसका 1 लाख रुपये आ गया। मेरी बात सुने, ये गरीबों को देने की बजाय ये अमीरों को दे रहे हैं, गरीबों से ले रहे हैं। पेट्रोल जितना भी फ्री है वो सारा अमीरों का है। जो गरीब 30,000 रुपया कमाने वाला है वो हर टैक्स पे कर रहा है, बिजली का बिल भी दे रहा है, फ्यूल भी अपनी जेब से डाल रहा है। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको सब कुछ फ्री है। ये कैसा कानून है? और अल्लाह के बंदो, ये वो वाम है जो आपके वोटों से आई हुई है। आप उनके वोटों से आए हुए हैं, आप इनके वोटों से लग्जरी गाड़ियों में बैठते हैं, आलीशान महल्लात में रहते हैं। जितनी भी साजिशें हैं इनकी वजह से आपके पास हैं, तो इनका कुछ ख्याल तो करो यार। आए दिन ये पीछे देखा है आपने, गुजरांवाला में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल की वजह से, खुदकुशी भी हो रही है। इसका जवाब कौन देगा? अल्लाह ताला ने जिसको जितनी ताकत दी होगी उसी हिसाब से उससे जवाब ही लिया जाएगा। तो खुदा का खौफ करो, कल को तुमने मरना भी है, कि क्या अल्लाह के हुजूर कौन सा जवाब दोगे? ये निगरानों का क्या, निगरान जो हैं ये 1.5 साल हुकूमत करके गए, इनके मतलब क्या कहते हैं? ये भी उन्हीं की पैदावार है, ये भी उनकी पैदावार। इन्होंने क्या करना है? बस ये अपनी सियासत से मकाने के लिए कर रहे हैं, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। देखिए, अब ये जो चीज़ जस्टिस ने फैसला किया, ये हमारे दिल बहुत अफसरदा हुए हैं। ख़त्म नबूवत की जो शिक है 295C, उसके ऊपर डाका डाला उन्होंने। तो हम मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहते, हम हमारा कल इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे प्रेस क्लब लाहौर के बाहर, पूरे जन के जितने भी पाकिस्तान के प्रेस क्लब सब के बाहर एहतजाज होगा तहरीक अलबाग पाकिस्तान का। तो ये हम तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, सारे मुसलमान हैं। हमारा अकीदा है कि कादियानी कल भी काफर था, कादियानी आज भी काफर है, कादियानी क़यामत तक काफर है इंशाल्लाह ताला। हाँ जी, मैं सिर्फ ये कि गरीब आदमी जो इस वक्त चीख रहा है, पीट रहा है, रो रहा है, शायद वो सांस भी ले ना पाए। तो ये जो निगरानों के दौर से लेके आज तक इमरान खान की हुकूमत को भी मैं बीच में ही डाल लेता हूँ, ये सब लोग जो है महंगाई करते आ रहे हैं, कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं। अपने जो बजट है इनका हमेशा बढ़ता है, यानी कि वो प्रेसिडेंसी का बजट जो है 25% बढ़ गया, प्राइम मिनिस्टर उसका 20% बढ़ गया, असम्बली का हर 18-20% बढ़ जाता है, गरीब आदमी का बजट कम हो जाता है। गरीब आदमी क्या करे? 30,000 रुपये तरह में घर का किराया भी देगा, बिजली का बिल भी देगा, बच्चों को भी पालेगा, कोई बीमार शमार खुशी कमी सारा कुछ 30,000 रुपये करना, वो कैसे करेगा भाई? हमें भी कोई फार्मूला दो ना। इमरान खान का जब वज़ीर बना था, वो कह रहा 2 लाख में मेरा गुजारा नहीं होता, साथ ही उन्होंने 9 लाख रुपये कर दिया था, तनख्वाह 9 लाख कर दी। ये वहाँ ये भी वही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में जब वाक़या हुआ तनख्वाह बढ़ाने के लिए, तो उनके जराया थी, उन्होंने कहा जी आप खलीफा हैं तो आपका गुजारा नहीं होता, आप आपकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, पहले मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ाऊँगा, फिर मैं उतनी तनख्वाह बढ़ाऊँगा, अगर उनका गुजारा हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। ये हमें ऐसा हुक्मरान चाहिए जो उनके नक्शे कदम में चलने वाला हो। ये यहूदियों के नक्शे कदम में चलते हैं, ये हमारे हुक्मरान जो है ना, ये उनकी मानते हैं, ये उनकी पैरोकार हैं। यहूदी तो बहुत तरक्की कर गए जी, साढ़े नाल 1000 करोड़ अरब हाथ दर्जे उत्ते चले गए। अल्लाह ने पता नहीं उन्होंने दी सुन ली, साड़ी नहीं सुन रहे। ये उनके पैरोकार है ना। जब तक ये सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे, इस्लाम का दामन नहीं थामेंगे, उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता। हम ज़िलो ख्वार ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, ये उनकी पैरवी करने वाले हैं, यहूदियों सारा की है। आपने सुना, लोगों की बड़ी तादाद का यही कहना है कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, काकड़ साहब हो या कोई और हो, ये सब दिखावा कर रहे हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। ये अपने दौर के अंदर लूटते रहे हैं
और इस दौर में भी इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब कुछ किया है, और सियासत चमकाने के नाम पर, सियासत के नाम पर ये अदालतों का रुख कर रहे हैं, वरना इनको आवाम की 1% भी परवाह नहीं है। ये झूठ है और सिर्फ मक्कारी का काम कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।